Assalamu alaikum students. Today in our lab we are going to learn about Microsoft Excel. It's our first lab of MS Excel. Let me tell you why we use Excel. Excel is used to create tables, adding records in the table, um, hiding and unhiding rows of the table, deleting or inserting new record columns or rows in the table. Today we are going to learn following features of Microsoft Excel, which is creating the new workbook from scratch or using built-in templates in Microsoft Excel database. Let me show you here. As we are going to start from the beginning, so I'm going to use this blank workbook. But if you have some task in your mind to perform, Microsoft Excel give so many built-in templates. You may use any of them. Just enter your data and your task will be performed quickly and more professionally. So we are going to start from the scratch. Here it's the interface of Microsoft Excel. Uh, you may see um, same features of Microsoft Word, like I'm going to check the file. In file you can see the home option. New is used to open the new file in Microsoft Excel. Open to open another existing saved file of Microsoft Excel that you already have created and saved somewhere in your disk drive or in your USB or CD, whichever media you are using. Then you have to save the file after finishing your work, and the other option is save as. Save as is used to save the same file with some other name or with some other format, like in your Word document you used to save that file in Microsoft. Instead of Microsoft you were using PDF format, and today's lab you have to submit in PDF format also. Okay, other are the print option. If you want to print that Excel sheet that you just perform or share it and so on. So I'm going back to the main interface of Microsoft Excel. These are almost same features on the ribbon. Let me tell you first. This is the title of Excel, which is book 1. आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो जब आप इसको सेव या सेव एज करोगे, तो आप जिस काम के लिए आपने एक्सेल शीट क्रिएट की होगी उसी नाम से आप इसको सेव कर सकते हो. अच्छा, फिर होम में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आप यूज कर सकते हो. राइटिंग जो आपको पसंद है, साइजेस हैं, आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यू करना है, आपको इन सब की कमांड्स भी आनी चाहिए. अच्छा जी, फिर क्या है, ये हमारे पास कुछ यहाँ पे आपको ABCD की फॉर्म में कुछ कॉलम्स नजर आ रहे हैं. इनको फील्ड भी कहते हैं. और इसके पैरेलल यहाँ पर आपको रोज नजर आ रही हैं जिनको नंबरिंग असाइन की हुई है और ये सीक्वेंस में नंबरिंग चल रही है. अच्छा, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ या मैं इस एरिया में क्लिक कर रही हूँ, कहीं पे ये चीज कहलाती है सेल. सेल असल में क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम रो एंड कॉलम. Let's suppose if I'm clicking here, you can see this is dth column and 4th row. तो इस सेल का जो नेम या एड्रेस हुआ वो हमारे पास हुआ D4. अब ये देखें लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम बॉक्स में उसका नाम आ रहा है. अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो B कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो ये देखें यहाँ पे उसका नेम आ रहा है उस सेल का जो भी सिलेक्टेड है, B1. आप कहीं पे भी रैंडमली क्लिक कर लो, ये K कॉलम है और रो है 10. ठीक है, जहां पे भी आप क्लिक करते हो कॉलम और रो साथ ही हाईलाइट हो जाते हैं. तो ये देखें यहाँ पे K10 लिखा आ रहा है. उसके साथ यहाँ पर ये फार्मूला बार है. आज के लेक्चर में हम फार्मूलाज तो नहीं सीखेंगे, लेकिन इसका यूज होगा. यहाँ पे आप कोई भी फार्मूलाज वगैरह लिख सकते हैं और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे रिजल्ट पे. लेट्स सपोज कुछ एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, आप कोई रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है. अच्छा, उसके बाद चलें हम एक छोटी सी फाइल बनाते हैं. वैसे मैं कह देती हूँ जी सीरियल नंबर, ठीक है, नेम सब्जेक्ट 1, या फिर आप कह लें कि जी इंग्लिश के मार्क्स, और आप कह लेंगे जी ICT के मार्क्स, और कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, लेट्स सपोज इस्लामियात के मार्क्स. ठीक है, और फिर
चलें 3 सब्जेक्ट के साथ ही हम रखते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हमें रोल नंबर वगैरह यहाँ पे असाइन करना है स्टूडेंट का, और रोल नंबर की सीरीज चल रही है, स्टार्ट से शुरू हो रहे हैं जी, पहला रोल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो एक्सेल हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 वैल्यूज ऑफ द सीरीज दैट यू वांट टू जनरेट द सीरीज ऑफ सेम नंबर टाइप। जैसे 3 वैल्यूज है यहाँ पे, पहली वैल्यू पे मैंने क्लिक किया और मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट किया तो ये देखें इसमें बॉक्स नजर आ रहा है। अच्छा, इस बॉक्स के साथ यहाँ पे एक छोटा सा आपको डॉट नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, जब मैं इस पर कर्सर लेकर जाती हूँ तो ये प्लस का साइन शो कर रहा है। ठीक है, यू हैव टू क्लिक दैट एंड ड्रैग डाउन। ठीक है, जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, लेट सपोज मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, तो मेरी 2 से सीरीज स्टार्ट हुई है तो मैं 21 तक लेके जाऊंगी, तो ये 20 तक ऑटोमेटिकली काउंट लिखा आ गया है उसी सीरीज के साथ। देखिए कितना आसान है एक्सेल में ये काम करना, इसकी बजाय कि आप 1 2 3 सारी काउंटिंग लिखें, आपने इसको इजीली यहाँ पे ऑटो जनरेट सीरीज के थ्रू आपने काम कर लिया। इसके अलावा लाजमी नहीं कि आप सिर्फ सीक्वेंस में ही नंबर्स आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, आप कोई और सीरीज जनरेट कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 8। आप ये सीरीज लिखें, आप इसको सिलेक्ट करें और फिर आप इसको ड्रैग डाउन कर दें, तो ये देखें ये वही सीरीज जनरेट होती जा रही है। ठीक है, किसी भी तरह की 1 3 5। ठीक है, इवन ऑड नंबर मैंने कहा चलो दोनों की सीरीज हम यहाँ पे जनरेट करवा देते हैं। ठीक है, उसकी इसके अलावा आप डेज अगर आपने लिखने हैं, चूंकि डेज भी हमें पता है कि चले हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया एंड देन जनरेट, तो वो डेज ऑफ द वीक यू कैन सी, एंड यू कैन आल्सो राइट देयर शॉर्ट फॉर्म मंडे ट्यूसडे, जस्ट राइट एटलीस्ट 3 वैल्यूज। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम एज जैन फैब मार्च, आप इसको क्लिक करें, यू विल जनरेट द सीरीज ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, ये डाटा मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि ऑटोमेटिकली सीरीज इसमें जनरेट होती है। आपको ये डाटा नहीं चाहिए, जस्ट क्लिक ऑल द डाटा एंड हियर यू कैन सी द डिलीट ऑप्शन। चाहे आप यहाँ से डिलीट कर दें तो इन तमाम सेल्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं इनका डाटा डिलीट हो जाएगा, या अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपको क्या डिलीट करना है। आपको तमाम सेल्स का डाटा डिलीट करना है, कोई शीट पूरी डिलीट करनी है, डिलीट कॉलम करने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जी ये डिलीट सेल, अच्छा जी एंटायर कॉलम, ओके, तो ये सारे का सारा डाटा डिलीट हो गया। और इंटायर कॉलम किया था तो यहाँ पे जो उनके नेम्स आ रहे थे वो भी डिलीट हो गए, तो मैंने दोबारा अंडू किया। अच्छा जी, उसके बाद में नेम जैसे हम रख लेते हैं, नेम है अली, सारा, अहमद, सोनिया, कंजा, कोई भी नेम। लेट्स सपोज इनके 10 में से इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये गॉट 9 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 marks, 8 marks, 9 marks, 9 marks, 10, 7, 8, 7, 9, 10 and so on। ये हमने एक टेबल जनरेट किया है। अच्छा, अब हम इन सारे फीचर्स को यूज करेंगे कि क्या क्या हम चेंजिंग इस टेबल पे ला सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि आपने अगर आपने हेडिंग का स्टाइल कुछ और रखना है, लेट्स सपोज यू वांट दिस हेडिंग, और आपको जो टेक्स्ट चाहिए वो किसी और डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए, किसी और स्टाइल में चाहिए, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर है कि आपने इस टेबल को इसके जो फॉन्ट है उसका कलर चेंज करना है, तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये
लेट्स सपोज हम इस 9 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये कुछ फीचर्स हैं अलाइनमेंट के कि ये जो 9 आपको राइट बॉटम में नजर आ रहा है, आपने इसको टॉप अलाइन करना है। आप इसको क्लिक करें, चूंकि ये भी सेल का साइज यहाँ पर उसकी हाइट इतनी नहीं है, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके इसकी हाइट इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये देखें अब आपको टॉप पे नजर आएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मिड में ला सकते हैं, बॉटम में ला सकते हैं, और ये फिर वही जैसे आपने वर्ड में यूज की थी, लेफ्ट अलाइन, मिड अलाइन, राइट अलाइन, आप उसको चूज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं जी, मिड में आ जाए, ये सब टॉप में चले जाएं, या बिल्कुल बॉटम में आ जाए, बॉटम लेफ्ट अलाइन हो, राइट अलाइन हो, ये सारी अलाइनमेंट आप चूज कर सकते हैं। उसके साथ ये इंडेंट का ऑप्शन है, ये जैसे वो रूलर हम चेंज करते थे वर्ड में, उसी तरह ये भी इंडेंट अलाइनमेंट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर है कि अगर आप कोई ऐसा फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप कुछ अमाउंट लिख रहे हैं कि कोई आपने प्रोडक्ट परचेज की है, उसकी प्राइस लेट सपोज $10 है, तो अगर आपने इसके साथ कुछ करेंसी साइंस लगाने हो तो उसके यहाँ पे ऑप्शन है, ये जनरल के ऑप्शन में आप यहाँ जाएं, डॉलर का साइन लगा दें तो डॉलर्स के साथ लग जाएगा। ठीक है, साथ उसने 00 आगे साथ सेंट भी बता दें कि $10 और 00 सेंट उसकी प्राइस है। आप ये जो डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, डेसिमल की वैल्यूज मैं ये डिक्रीज कर रही हूँ और ये साथ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, डॉलर के अलावा और भी बहुत सारे साइंस आपको मिल जाएंगे, अगर आपको यूरो में है या ये लीरा है, चाइनीज येन है, आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं कि अगर आपने नंबर शो करवाने हैं या करेंसी के साइन शो करवाने हैं या काउंटिंग से रेलिवेंट है, आप डेट और टाइम यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, या अगर आपके मार्क्स हैं आपने उसकी परसेंटेज शो करवानी है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, तो बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट डिमांड आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी, आप कह रहे हो वो डॉलर साइन आ गया और साथ उसके डेसिमल वैल्यूज भी आ रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही 10 वैल्यू ही चाहिए, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, तो फिर वापस वो 10 वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि आपने जो टेबल क्रिएट किया हुआ है आपने उसको किस तरह से उसको डिस्प्ले करवाना है। अगर आप उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, मैं पहले इसकी हाइट ठीक कर दूँ। अच्छा, लेट्स सपोज इतना मेरा टेबल है और मैं यहाँ पे उसको कुछ वैल्यूज असाइन करवाना चाह रही हूँ, मुझे पता चले कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं या लोअर मार्क्स किसके हैं, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं कि जी ग्रेटर देन, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि जिस स्टूडेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है, ठीक है, उसको वो हाईलाइट कर दे। किस कलर का हाईलाइट करे? जी मैं कहती हूँ लाइट रेड फिल कर दे उसको, या कोई और कलर दे देते हैं, ग्रीन फिल, डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर दे उसका। ठीक है, तो ओके किया, तो अली के 10 मार्क्स थे जो कि 9 से ज्यादा है, अहमद के 10 है, सोनिया के 10 है, तो वो ये तो बहुत छोटा रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है, अगर बहुत बड़ी डेटाबेस है, आपकी अगर क्लास का रिजल्ट है उसमें से फाइंड आउट करना है कि किस लैब में स्टूडेंट के हाईएस्ट स्कोर है, लैब 1 में किसके हाईएस्ट है, 2 में, तो आप इजीली यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, ये तो यहाँ पे कंपैरिजन कंडीशंस लगाई हुई है ना कि जिनके मार्क्स बिटवीन क्या बता रहा है कि उनके मार्क्स शो करे जिनके मार्क्स लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 7 और 7 एंड 10 के दरमियान जिनके मार्क्स हैं उनको हाईलाइट कर दे, और किस कलर का हाईलाइट करे? लाइट रेड फिल, अच्छा येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट कर दे। ठीक है, ओके किया, तो जितनी भी क्लास के नंबर वो हमारी कंडीशन थी कि 7 और 9 के दरमियान थे, तो उसको उसने हाईलाइट कर दिया। इस तरह बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इसको सिलेक्ट करें, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर कुछ डाटा बार्स हैं वैल्यूज के हिसाब से कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं उसको वो ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। ये देखें, जो साथ उसके बार क्रिएट हो रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू थी और उसका बार भी उन्होंने उसी तरह इंक्रीज कर दिया है। कलर शेड्स हैं, आपको ये नहीं करना, नो वरीज, कलर शेड आ जाए, कंट्रोल जी करें इसको, और
कलर स्केल्स देखें, यहाँ पे जो कम नंबर है वो डार्क शेड होगा, रेड का होगा, और उसके बाद फिर ऑरेंज हुआ, फिर येलो हुआ, फिर लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस तरह से उन्होंने कलर शेड अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। आप इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप कलर शेड अप्लाई कर दें, क्योंकि वहां पे वो रोल नंबर और उन सबको भी ले रहा था, तो यहाँ पे इजीली आपको पता चल रहा है कि आपने क्या कलर स्कीम शो करवानी है। ठीक है, मैं पहले इस फॉन्ट का कलर चेंज कर दूं ताकि ये विजिबल रहे। देखें, अब जिनके 10 मार्क्स थे वो ग्रीन में आ रहा है, उससे कम 9 येलो में आ रहा है, फिर ऑरेंज में 7 जा रहा है, 6 फिर रेड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे और कम मार्क्स कर देती हूँ, लेट्स सपोज मैं 4 कर देती हूँ, तो ये और डार्क रेड चला जाता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 मार्क कर रही हूँ, तो वो कलर स्कीम उस लिहाज से ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। इसके बाद कुछ और ऑप्शन भी हैं। हाँ जी, आपने इस किस्म के कोई आइकन शो करवाने हैं कि कम कितने हैं, एवरेज कितने हैं, ज्यादा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये रेंज ऊपर को जा रही है, यहाँ पे कलर स्कीम शो कर रही है, एवरेज है या मिड में है, वेरी लो मार्क्स। आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, here you can see different signs. Here they are indicating with flags, flag values, और यहाँ पे वो बार शो कर रहा है कि कितने वैल्यूज कम है या कितनी वैल्यूज ज्यादा है। ठीक है, ये वो पाई चार्ट बना के साथ वैल्यूज शो की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल, कि ये जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मुझे इसको किसी टेबुलर फॉर्म में लेकर आना है जो ऑलरेडी बिल्ट इन टेबल है एक्सेल के पास, मैं किसी भी कोई भी फॉर्म सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने वो टेबल एक सेलेक्ट किया, तो वो कह रहे हैं जी ये फॉर्म आप क्या ये टेबल आप चूज करना चाह रहे हो। मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकती हूँ, कि मैं कहती हूँ नहीं जी मुझे इससे बड़ी फॉर्म चाहिए टेबल में। जितना आप एरिया सेलेक्ट करेंगे, देखें जैसे मैंने यहाँ तक इस एरिया को सिलेक्ट किया है, तो ये बता रहा है रेंज, कि ये स्टार्टिंग रेंज है, उसके बाद कॉलम है, फिर ये इसकी एंडिंग रेंज है। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल इसी रेंज में चाहिए, देन आई क्लिक ओके। तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतना टेबल उसने उसी फॉर्मेट में क्रिएट कर दिया है। आप अपनी मर्जी से इसके बाद में फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो या जो पसंद हो, उस लिहाज से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे तो आपको एक छोटा सा टेबल नज़र आ रहा है ना, जिसमें आपको वैल्यूज और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कई दफ़ा बहुत लेंथी टेबल होते हैं, अगर लेट्स सपोज 50+ स्टूडेंट हैं, तो आप जब उसको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो आपको पता नहीं चलता कि ऊपर कॉलम की वैल्यूज क्या थी। तो इस तरह टेबल जब आप क्रिएट करते हो, जो आपके कॉलम की वैल्यूज थी, ये देखें, ये इस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यूज की तरह ये आपके साथ साथ आपको डिस्प्ले होती जाएंगी। आप जहां मर्जी जाते जाएं, एंड तक ये आपको शो करवाती रहेंगी वैल्यूज। ठीक है, सीरियल नंबर शो कर रहा है या नेम कर रहा है, वो जो हमारे पास पहले टेबल था उसमें ये सब आप नहीं देख सकते। ठीक है, ये एक नॉर्मल टेबल जो हमने क्रिएट किया था, इसको हमने कोई फॉर्मेटिंग कोई स्टाइल नहीं दिया था, तो इसमें कॉलम वही शो होंगे आपको ABCD। वो आपको याद रखना होंगे कि अच्छा 8 में शायद हमारे इंग्लिश के मार्क्स थे, 9 में हमारे ICT के मार्क्स थे, 10 में इस्लामियात के मार्क्स थे। लेकिन जब आप फॉर्मेट अप्लाई कर देते हो टेबल्स का, तो फिर ये देखें वही चीजें फिर ड्रॉप डाउन मेन्यूज के साथ आपके साथ साथ रहती हैं टेबल में, जहां जहां तक वैल्यू जाती है। लेकिन उसके लिए आपको इस टेबल की रेंज में रहना है। अगर आप आउट ऑफ रेंज जाते हैं, जैसे आई एम क्लिकिंग हियर एंड आई एम गोइंग टू डाउनवर्ड, हियर यू कांट सी दैट कॉलम वैल्यूज इन ड्रॉप डाउन मेन्यूज। ठीक है, जैसे ही आप टेबल की रेंज में आते हैं, साथ ही वो सारी वैल्यूज दोबारा अपीयर हो जाती हैं सारी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे आपका ये सेल तो हमने ऑटोमेटिकली हमने टेबल की सेटिंग से हमने एक्सेस कर लिए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई स्टाइल देना चाहते हैं सेल्स को। मैं सेल पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देती हूँ। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू राइट हियर एप्पल। ओके, आप इस सेल पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको सेल के वेरियस स्टाइल नजर आ जाएंगे कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल इसको देना है। बल्कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए।
अच्छा, उसने उसको टेबल में ऐड कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल साफ था। चलें जी, यहाँ पे रहने देते हैं। अच्छा, अब आप देखें जहां जहां मैं कर्सर लेकर जा रही हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा बैकएंड पे आपको वैसे ही वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेल को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कोई न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर देना है नहीं देना, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। वेरियस, क्या वो सेल में कोई नंबरिंग है, कोई करेंसी है, कोई करेंसी का सिंबल आपने ऐड करना है, ठीक है, वो सिंबल वगैरह भी सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। क्या आपने उसमें कोई डेट और टाइम ऐड करना है, तो डेट और टाइम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस किस्म का आपको नजर आना चाहिए, ठीक है, टाइम आपने ऐड करना है, ठीक है, अगर आप मार्क्स हैं, परसेंटेज शो करनी है, परसेंटेज के बाद कितनी वैल्यूज आपको डेसिमल के साथ शो करवानी है, वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू है, डेसिमल वैल्यूज हैं, उनको अगर आपने फ्रैक्शन टाइप लिखना है तो कैसे, ठीक है, और ये सिंपल टेक्स्ट के आपको कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी। फिर ये देखें, आप उस सेल को कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, लेट्स सपोज आई एम चूजिंग दिस बॉर्डर, and if you want to choose some color, yes, choosing the dark green color ताकि वो prominent रहे, और उसमें उसको आपने कोई फिलिंग देनी है, उसके बैकएंड पे जी मैं कहती हूँ ऑरेंज फिलिंग दे दें, और ओके किया तो ओके, ठीक है, अभी नहीं आई, दोबारा कर देते हैं। सेल पे जाएं, सेल स्टाइल्स पे जाएं, न्यू सेल स्टाइल, हमने असल में इसको अप्लाई नहीं किया था। आप फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे इसको कलर दे दें और ओके, फिल शेडेड बॉर्डर, नो बॉर्डर, ठीक है, ओके किया, इट इज नॉट डिस्प्लेइंग हियर, उसको कैरी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको सिंगल सेल के साथ ये काम करना है तो आप यहाँ फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट सेल में जाएं, यहाँ पे आप ऑरेंज शेड दें उसको, देन यू क्लिक ओके, नाउ यू कैन सी दैट शेड। यहाँ से सेल स्टाइल्स में नहीं ये शो कर रहा, लेट मी चेक दैट अगेन, फॉर्मेट, ओके, फिल इफेक्ट, वर्टिकल, ओके ओके ओके, नो, एनी हाउ। अच्छा, उसके बाद है इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन, कि अगर आपको कोई नई रो या कोई नया कॉलम इंसर्ट करवाना है एग्जिस्टिंग में, जैसे मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स हैं, यहाँ पे आईसीटी के मार्क्स हैं, इन दोनों के दरमियान में मुझे कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ें, लेट्स सपोज आप ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मुझे ड्राइंग को ऐड करवाना है, तो जस्ट क्लिक हेयर ऑन आईसीटी एंड यू क्लिक हेयर इंसर्ट, चाहे आप यहाँ से इंसर्ट कर लें या आप यहाँ से इंसर्ट कर लें, दे बोथ आर सेम। इंसर्ट में फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपको क्या इंसर्ट करवाना है। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, तो मुझे कॉलम इंसर्ट करवाना है, तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉलम का यहाँ पे आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे नाम लिखते हैं ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग पे क्लिक किया तो साथ ही उसका कॉलम क्रिएट हो गया। ड्राइंग के मार्क्स लिख लें जी, 6, 8, 9, 10, ठीक है, हमने उसको कुछ मार्क्स भी दे दिए ड्राइंग को। फिर उसके अलावा आपको कोई रो ऐड करवाना है, आपको पता चला जी रोल नंबर 2 तो एक और स्टूडेंट है उसका है, तो आप क्या करें, इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करें, रो पे क्लिक करके आपने किया था, तो यहाँ पे आप एक नया स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, शोएब लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे एक नया स्टूडेंट ऐड हो गया। आप लेट्स सपोज सारा और अहमद, इनके भी कुछ रोल नंबर चेंज हुए हैं, यहाँ पे आपको एक नया स्टूडेंट ऐड करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड यू हैव टू नेम इट, लेट्स सपोज द न्यू स्टूडेंट इज मदीहा, so you can click on new row, add new row and you can write the name मदीहा, और उसके रेलिवेंट आप जो भी मार्क्स हैं आप वो मार्क्स ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ये हमने टेबल चूज किया था, उसकी सेटिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, नो वरीज, आप दोबारा टेबल फॉर्मेट में जाएं, हमारा ये टेबल था, जस्ट क्लिक इट और वही सेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये जो टेक्स्ट आपने चूज किया था वो आपने यहाँ से चूज किया था कि आपको ये सारे का सारा एरियल रखना है और फॉन्ट साइज कितना चाहिए,
लेट्स सपोज हमें 12 रखना है। फिर आपने यहाँ से कुछ अलाइनमेंट उसकी चेंज की थी कि आपको मिड में चाहिए और मिड अलाइनमेंट चाहिए, तो ये सेटिंग आपको फिर दोबारा मैन्युअली करना होगी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फिल करने के लिए, यहाँ पे फिल का ऑप्शन है। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में एक ऑटो जनरेट सीरीज की थी 1 2 3 4 5, इसी तरह लेट्स सपोज ये एप्पल लिखा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि जी यही एप्पल मुझे एक रो बन जाए जिसमें ये एप्पल ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको फिल डाउन, फिल अप, फिल राइट और फिल लेफ्ट भी कर सकते हैं। ये फिल भी वही ऑप्शन दे रहा है, आपने फिल डाउन करना है उसको, राइट अप या लेफ्ट करना है, आप वहां से भी चूज कर सकते हो और आप यहाँ से भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन एप्पल एंड ड्रैग इट टू द राइट, तो ये राइट सारा एप्पल एप्पल फिल हो जाएगा। उसी तरह इफ यू हैव टू फिल डाउन, ड्रैग इट टू डाउन, इफ यू फिल हैव टू फिल अप, ड्रैग इट टू अप, इफ यू हैव टू फिल लेफ्ट, ड्रैग टू योर लेफ्ट। ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड पे फिलिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है ये सीरीज जनरेट करने की। सीरीज जनरेट करने का तो मैंने आपको बता दिया, आप डेज की, वीक डेज की, मंथ की, ईयर्स की या डेट की, ठीक है, सीरीज जनरेट कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद कोई डाटा है जो आपको क्लियर करना है, आई वांट टू क्लियर दिस, जस्ट क्लियर ऑल, ठीक है, तो वो सारे का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लियर फॉर्मेट क्या करा जी, वो जो हमने सेल की सेटिंग यहाँ पे की थी फॉर्मेट में जाके, इसने सिर्फ वो फॉर्मेट क्लियर किया। ये देखें, सेल वही है, क्लियर फॉर्मेट करना है। कंटेंट्स क्या होते हैं, सेल वही रहेगा, सब चीज वही रहेगी, जो उसके अंदर डाटा लिखा हुआ है ना वो डिलीट हो जाएगा। ये देखें, एप्पल डिलीट हो गया। अच्छा जी, कमेंट्स भी क्लियर कर सकते हैं, आगे जाके हम कमेंट करना भी सीखेंगे। अगर वो कमेंट लिखे हुए आपने उसको क्लियर करना है तो यू हैव टू क्लिक हियर एंड क्लियर कमेंट्स। इसी तरह हाइपर लिंक्स हैं, जैसे वर्ड में हमने हाइपर लिंक बनाना सीखे थे, यहाँ पे भी आप उनको क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा, फिर लेट सपोज के हमारे पास डाटा है। मैं कह देती हूँ कि जैसे आपकी लैब आप परफॉर्म कर रहे हो, मैं आपको कहती हूँ जी आपके लैब 1 के मार्क्स और लैब 2 के मार्क्स, लैब 3 के मार्क्स, ठीक है। और आपकी जो लैब 1 है उसमें दो CLOs एंड PLOs यूज हो रहे थे, जैसे CLO 3 था और PLO के लिए हमारे पास जगह नहीं बची, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम आ गया, तो मैंने यहाँ लिखा जी PLO 5, कुछ ऐसा ही था शायद, या CLO। अच्छा, इसके भी फिर CLO 3 एंड आई हैव टू ऐड PLO 5, सो आई हैव टू इंसर्ट न्यू कॉलम हेयर, यहाँ पे आ जाएगा PLO 5, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये लैब 1 के ही CLO 3 एंड PLO 5 है, तो अब मुझे इस कॉलम को ये दो कॉलम्स में जो लैब की वैल्यू है मुझे सेम जगह रखनी है, मुझे इसको मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को फिर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर का, आई क्लिक है, तो वो दोनों मर्ज हो गए और लैब 1 सेंटर में लिखा आ गया। इसी तरह ये CLO 3 और PLO 5 लैब 2 के थे, तो मैंने इस पे क्लिक किया मर्जेंट सेंटर, तो वो इसी तरह हो गया। यहाँ पे भी आप इसी तरह इसको मर्जेंट सेंटर कर दें और फिर आप अपने CLO 3 और PLO 5, ठीक है। जैसे फिर लैब 1 में आपकी 4 में से मार्किंग थी, लेट्स सपोज यू गॉट 3 एंड 4 फ्रॉम लैब 1 एंड 4 एंड 4 फ्रॉम लैब 2 एंड 3 एंड 4 फ्रॉम लैब 3, इस तरह फिर आपकी ग्रेडिंग असाइन हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा और सेटिंग इसकी कर रही हूँ फॉर्मेट में जाके। अच्छा, फॉर्मेट में कुछ ऑप्शन है यहाँ पे जो मैंने आपको नहीं बताया, लेट्स चेक दैट। अच्छा, फॉर्मेट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप रो की हाइट इंक्रीज कर सकते हो। रो की हाइट क्या है कि यहाँ पे रो की आपको ये हाइट नजर आ रही है और ये चीज कहलाती है विड्थ। आप आप रो की हाइट पे जाएं और यहाँ पे 18.75 बाय डिफॉल्ट दी हुई है। लेट्स सपोज आई वांट टू गिव 25, मैं इसकी हाइट 25 ओके किया, तो जहाँ जिस पे मेरा कर्सर था उस रो की हाइट उसने 25 कर दी। यू कैन चेंज एनी। इसी तरह आप विड्थ भी चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 8.43 है, मुझे 20 करना है,
जस्ट क्लिक ओके, तो ये देखिए इसकी विड्थ चेंज होगी। आप मैनुअली भी इसको कर सकते हो, जस्ट क्लिक हियर एंड ड्रैग टू द लोअर, और इसी तरह रो को भी आप इसी तरह एडजस्ट कर अच्छा। फिर एक ऑप्शन आता है जी ऑटो फिल का, कि जितना आपका टेक्स्ट कंटेंट्स हैं उस सेल के अंदर उस हिसाब से उसको ऑटो फिल करते हैं। तो फॉर्मेट में जाएं और ऑटो फिल रो हाइट कर दें, तो जितना टेक्स्ट होगा कॉलम विड्थ भी कर दें। ठीक है, तो जितना आपका टेक्स्ट का साइज है उस हिसाब से वो कॉलम्स और रोज आपकी ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती हैं। इस तरह काम किया हुआ बड़ा अच्छा लगता है। कुछ और ऑप्शंस हैं इसमें। और अच्छा, डिफॉल्ट विड्थ पे जाना है तो वही जो ऑलरेडी given थी, you just have to select them, format, default width 8.43, हाँ जी इतनी ही करनी है, विड्थ भी इतनी हो जाए और साथ हाइट भी उतनी हो जाए। I suppose I am doing here 10, ओके किया तो उसने 10 के हिसाब से और उसको एक्सपेंड कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉटम में आप देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ शीट्स नजर आ रही है। ये जो हमारे पास एनवायरनमेंट खुला हुआ है ना, ये वर्कबुक कहलाता है। वर्कबुक में हमारे पास एक से ज्यादा शीट हो सकती है। जैसे एक रजिस्टर होता है ना, आप उसके अंदर अपना अकाउंटिंग का कोई हिसाब किताब कर रहे हो, एक पेज पर एक अकाउंटिंग का स्टफ है, दूसरे पेज पे दूसरा स्टफ है, तीसरे पे तीसरा स्टफ है। इसी तरह इस वर्कबुक में भी आप वेरियस शीट ऐड कर सकते हो। अभी ये शीट 1 ओपन है, आप शीट 2 ओपन कर लो, ये देखो बिल्कुल ब्लैंक आपको खुल जाएगी। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई टेबल जनरेट कर लो। इस तरह आप मुख्तलिफ शीट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इस शीट में अगर आपको थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करना है तो इसकी भी कुछ सेटिंग है कि टैब कलर्स आप उसको ऐड कर दें। जैसे पहली शीट है मैंने इसको रेड कलर दे दिया, शीट 2 है टैब कलर्स मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया, शीट 3 है टैब ऐड कलर्स आई एम गिविंग दिस येलो शेड है। ठीक है, तो जो शीट अभी ओपन होगी वो आपको नजर आ जाएगी, बाकी शीट्स ये नजर आ रही होंगी। शीट को आप रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम लेट सपोज ये है हमारा अगर आपका ये सेमेस्टर वाइज रिजल्ट है, सेमेस्टर 1 रिजल्ट, ये आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ गया। शीट 2 को आप रीनेम कर लें, सेमेस्टर 2 रिजल्ट एंड सो ऑन। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको नेम दे सकते हैं। अच्छा जी, आपने किसी शीट को हाइड करना है, जस्ट क्लिक ऑन हाइड, तो शीट 1 हाइड होगी। जितना भी आपका डाटा है वो आपको नजर नहीं आएगा। वर्कबुक यूज करेंगे लेकिन वो डाटा आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अनहाइड करना है, अगेन राइट क्लिक ऑन द शीट एंड अनहाइड। तो वो कह रहा है जी क्या अनहाइड करना है, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट, आई से यस ओके, तो वो आपको शीट दोबारा डिस्प्ले हो जाएगी। ये सारी सेटिंग जो है ये आप फॉर्मेट में जाके भी कर सकते हैं। जी एक और ऑप्शन है इसमें, इस शीट को अगर आपने प्रोटेक्टेड करना है, आप चाहते हैं कि आपने जो डाटा एज इट इज लिखा है ना ऐसा ही रहे, अगर आप ये फाइल किसी से शेयर करें तो वो उसमें चेंज ना ला सके, तो आप फॉर्मेट में जाएं, प्रोटेक्ट शीट करें, और वो कह रहे हैं जी अच्छा आपने प्रोटेक्ट शीट करनी है तो आपने कोई पासवर्ड उसको देना है या फिर आपने वैसे ही इससे एक्सेस ले लेनी है। अच्छा क्या क्या एक्सेस देनी है आपको इस प्रोटेक्टेड शीट में। अच्छी अच्छा जो भी इसको एक्सेस करे वो सेल्स को क्या अनलॉक कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो फॉर्मेट को सेल्स को फॉर्मेट कर सकता है या नहीं कर सकता, कॉलम्स को कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने सारे अनचेक कर दिया। मैंने कहा अब इस शीट को कोई भी ओपन ना करे, ओपन कर ले डाटा देख सकता है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकता किसी भी किस्म की, ना कोई रो और कॉलम ऐड डिलीट कर सकता है ना। ठीक है, ये सारी मैंने ओके किया। तो अब ये जो हमारी शीट है ये प्रोटेक्टेड है। अब देखिए आप इसको कहीं पे भी क्लिक करें करें ये मैसेज आ जाएगा, द सेल और द चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, आप इसमें चेंज नहीं ला सकते। चेंज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें ये सारे फीचर्स जो हैं ये डिसेबल हो गए, जितने भी आपको रिबन में फीचर्स नजर आ रहे हैं। आप दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे और उसको अनप्रोटेक्टेड करेंगे। ठीक है, जैसे अनप्रोटेक्टेड किया अब ये मैंने अलाउ कर दिया कि आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पाइवट टेबल।
अच्छा, पाइवट टेबल इस्तेमाल किस लिए होता है कि अगर आपके डाटाबेस में एक टेबल है, उसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेट्स सपोज इफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट आर देयर एंड यू जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्यू ऑफ देम, आप सिर्फ टोटल चाह रहे हैं और रोल नंबर चाह रहे हैं, तो उसके लिए पाइवट टेबल यूज होता है। या आप उसमें कुछ लिमिटेड रोज लेना चाह रहे हैं और बाकी टेबल का रिकॉर्ड आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए पाइवट टेबल यूज होता है। अच्छा, पाइवट टेबल में ये ख्याल करना होता है कि जिस टेबल को भी हम यहाँ पर समराइज करके अपने पास डिस्प्ले करवाने वाले हैं, उसमें उसकी तमाम रोज में डाटा होना चाहिए, उनमें रोज एम्प्टी नहीं छोड़नी। अच्छा जी, तरीका का क्या है, आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, सिलेक्ट टेबल और रेंज। अच्छा, अगर तो इसी शीट पे वो टेबल लोकेटेड है और उसी टेबल को आपने समराइज करके उसकी शॉर्ट फॉर्म आपने यहाँ लिखनी है, चंद कॉलम्स या रोज आपको चाहिए, तो फिर आप यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेंज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल कोई टेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही। दूसरा तरीका ये है कि यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, कि आपको कोई एक्सटर्नल डाटा सोर्स यूज करनी है इसके लिए, यानी कि वो टेबल आपकी ड्राइव में कहीं और पड़ा हुआ है या इसी वर्कबुक की किसी और शीट पे वो टेबल पड़ा हुआ है, तो फिर उसका क्या तरीकाकार है, आप यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स इस पे क्लिक करें। ठीक है, चूज कनेक्शन। अच्छा, अगर तो आपका वो टेबल जो आप जिसको समराइज करना चाह रहे हैं वो अगर आपकी कहीं हार्ड डिस्क में कहीं पड़ा हुआ है, तो आप मोर पे क्लिक करें तो ये सारा कंप्यूटर आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑलरेडी जो अवेलेबल टेबल्स हैं इस शीट के अंदर जो मेरे पास अभी ओपन है, तो उसके सारे टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी टेबल चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने एक्सपेंसेस का टेबल यूज किया है, इसको ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे ऑप्शंस हैं कि आपको एक न्यू वर्कशीट लेना है या जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है जो अभी करंटली ओपन है, क्या इस पे आपको उसको समराइज करवाना है, तो जो मुझे एक्जिस्टिंग पर ही समराइज करवाना है, देन आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। ओके किया तो यहाँ पे जिस टेबल को मैंने एक्सपेंसेस के टेबल को सिलेक्ट किया था, उसमें ये 4 कॉलम्स मौजूद हैं, जो है डेट, बायर, टाइप और अमाउंट का। लेट सपोज मैं उसमें से बायर का रिकॉर्ड चाह रही हूँ कि मुझे जितने भी बायर हैं उनका रिकॉर्ड आ जाए। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे उस टेबल में बायर थे डैड, कैली एंड मॉम, इन तीनों का रिकॉर्ड यहाँ पे नजर आ गया है। ओके, आई वांट द अमाउंट दे स्पेंड, आई क्लिक ऑन द अमाउंट। अच्छा जी, डैड ने $2000 की शॉपिंग की है, कैली ने 935, इसी तरह मॉम का भी नजर आ रहा है। अच्छा जी, शॉपिंग किस किस्म की है, आई वांट टू सी दैट, आप क्लिक करें। टाइप पर क्या चीजें खरीदी हैं, एयर फेयर, स्पोर्ट्स, टैक्सेस वगैरह, ये डैड की शॉपिंग है, तो ये सब आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि टाइप मुझे कॉलम वाइज चाहिए। ठीक है, मैंने टाइप को यहाँ पे उठा के कॉलम के पोर्शन में ड्रैग इन किया, तो आप देखें टेबल का जो लेआउट था वो चेंज हो गया। डैड ने 500 एयर फेयर पे खर्च किए, ऑटो इंश्योरेंस पे नथिंग, बुक्स पे भी कुछ नहीं, और क्या किया डैड ने, ठीक है, स्पोर्ट्स पे 1000, टैक्सेस 500 एंड टोटल डैड का 2000। इसी तरह कैली और मॉम का भी कॉलम वाइज हमें रिजल्ट शो हो गए। ठीक है, तो अगर आप इसमें डेट भी का भी एक ऑप्शन है, इसको भी क्लिक कर लें तो साथ उनकी डेट्स भी आ जाएंगी कि किस डेट में ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, डेट का जो फंक्शन है ना, ये और मजीद आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जैन लिखा हुआ है, जैन के साथ प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो आगे उसको फर्दर इन्होंने एलैबोरेट कर दिया कि 17 जैन 2017 को 500 का ये बिल डैड का था, 74 का बिल मॉम का था, 250 कैली का बिल था, तो ये स्पेसिफिकली बता दिया है। अब जी डेट आ रही है कॉलम में, आप डेट को रो में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, रो में डेट्स आ जाएंगी, रो वाइज उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरह पाइवट टेबल को आप यूज करते हुए यहाँ पे अपना रिकॉर्ड समराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये डेट की रो बन गई, ये रोज बन गई, ये रोज बन गई। इफ यू डोंट वांट डेट, नो वरीज, आप इसको खत्म कर दें। ठीक है, आप टाइप भी नहीं चाह रहे, आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि डैड, मॉम और कैली ने कितने एक्सपेंसेस थे उनके, तो ये आपको डाटा शो हो गया। तो इस तरह पाइवट टेबल, लेट मी शो यू अगेन। अच्छा जी, ये है हमारे पास पाइवट टेबल। और दूसरा ऑप्शन था जो मैं आपको बता रही थी कि सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, अगर इसी शीट में कोई टेबल या रेंज है जिसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेट सपोज कि इस तरह फिर आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे कि ये डाटा मैंने शो सिलेक्ट किया है और इसी को ही शो करवाएं
इसी एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर। अब मेरा कर्सर यहाँ पे सेट है तो ये टेबल इधर ही आ जाएगा। ओके पे क्लिक किया तो जी आपको क्या चाहिए, सम ऑफ अमाउंट चाहिए न्यू टेबल में, ठीक है, और रो के लेबल चाहिए, ठीक है। अगर आप रो के लेबल चाह रहे हैं, सम ऑफ अमाउंट नहीं चाहिए, तो देखें इस टेबल को मजीद समराइज करके यहाँ पे लिख लिया। तो ये इस्तेमाल है पाइवट टेबल का।